Hello everyone, my name is Akanksha Ranjan and I have cleared UGC NET JRF in 2022, and this video is about how to crack UGC NET JRF in 30 days. And because the forms are out and you must be wondering that how you should go about this examination if you have less time and if you are working as well. So in that case, this video is going to help you because it is going to guide you as how you should proceed for the examination. Instead of doing the hard work, you have to do the smart work if you have to achieve your target for this examination I'm talking about here. So सबसे पहले you have to understand that there are few basics that you have to go with whenever you start with the preparation of any competitive examination. So this is UGC NET JRF and I'm going to talk about law specifically. Also telling you how to study paper one as well, balancing both paper one and paper two, and the importance of paper one as well. So first of all, you have to know the exam pattern and you have to track the syllabus of the examination. These two things are very important if you are starting from scratch. First, exam pattern. We talk about the exam pattern, there are two papers, paper one and paper two. Paper one has total 50 questions and 2 marks each. So it is of 100 marks. And paper 2 is total 100 questions, 2 marks each, total 200 marks. So it is a 300 marks paper, and you have to score well. And for JRF, only top 6% of the students who are appearing for that subject will get the JRF, rest will get the NET. And it is a competitive exam, as you must be knowing. So here, when we talk about the exam pattern, it is clear that we have to focus on both paper one and paper two. पेपर टू इज लॉ, सो हमने वो पहले भी कॉलेज में पढ़ा है. वी हैव टू गो थ्रू द सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन. पेपर वन इज कम्प्लीटली न्यू. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अभी से स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, तो पेपर टू तो हमें करना है, वो हम सब कर लेते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज वो हमारा मेन सब्जेक्ट एरिया होता है. हम उसी में मास्टर्स भी करे हुए होते हैं. बट पेपर वन में बहुत सारे टॉपिक्स बहुत न्यू होते हैं, तो आपको उसमें बेसिक्स जो हैं वो कवर करने पड़ते हैं और बैलेंस करना बहुत जरूरी है. पेपर वन को छोड़ के जेआरएफ कभी नहीं हो सकता है. एटलीस्ट मिनिमम यू हैव टू एटलीस्ट आंसर मोर देन 35 questions correctly to target JRF. That is the bare minimum. Then we'll talk about how the syllabus mapping has to be done and what has to be focused more and how it has to be done in this video. So after mapping the exam pattern, syllabus mapping is important. So in the at least you should give 1 to 2 days in understanding what is the syllabus and what are your weak areas and what are your strong areas. For example, if you talk about law, there are three segments that you can see over here on this PPT, right? So high weightage means most of the questions are given from these topics, means around 50% of the weightage of the question paper will be covered by the high weightage section that you can see over here, which consists of jurisprudence, constitutional law, contracts, public international law, human rights law, which comes under international law, and law of torts. ठीक है. So these are the basic most important टॉपिक्स. ऑल्सो ये हमने बहुत डिटेल में कॉलेज के टाइम पे पढ़ा होता है. नो मैटर वॉट आर एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन इज, ये वाले सब्जेक्ट्स हमने सबने पढ़े हुए होते हैं. ठीक है. तो ये बहुत सबसे इजी भी होता है गो थ्रू करना, बिकॉज वी हैव टू रिवाइज अगर हमने पढ़ा हुआ है पहले से. और प्लस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं. तो हमें ये समझना होगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंपनी लॉ, बिकॉज इट इज वेरी लेंदी, द सिलेबस इफ यू सी ना, बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत कुछ पढ़ने का उसमें दिया हुआ है. बट क्वेश्चंस अगर उसमें से 3 आते हैं तो हम उतना टाइम, अगर हम 30 डेज में ही प्रिपेयर कर रहे हैं, उतना टाइम हम उसमें नहीं दे सकते. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किस में ज्यादा टाइम देके हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट अभी मार्क्स लाना है. ये कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें आंसर निकालना है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं हमें वो पहले कवर करना है, सबसे कम जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो हमें बाद में कवर करना है. ठीक है. तो जो हमारा पूरा प्रिपरेशन टाइम है उसका जो टाइम वेटेज है वो अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हम स्मार्टली ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए कम से कम टाइम में. ठीक है.
ये हो गया वेटेज की बात। अब आती है दूसरी कि अगर जब भी हम बात करते हैं कि कम से कम टाइम में हमें प्रिपेयर अगर करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। बट जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की बात करते हैं, तो व्हाट शुड बी द राइट मेथड विच विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट JRF, राइट? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? हमें प्रिंट आउट लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, या तो आप प्रिंट आउट ले लो, या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई बुक है जहाँ पे कंबाइंड सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो दोनों में से कुछ भी, जो भी आपके पास एक्सेस है उसको लो, आप सॉल्व करो क्वेश्चंस को, फिर डाइसेक्ट करो। डाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? सारे ऑप्शंस, आपने अगर कोई और दूसरा ऑप्शन चुना था करने के टाइम पे, तो आपने वो गलत वाला ऑप्शन क्यों चुना था, और बाकी सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस बारे में है, वो बाकी सारे ऑप्शंस की भी अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई केस का क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये वाला कॉन्सेप्ट कौन से केस में दिया गया था, एक उसका सही आंसर होगा, बट बाकी केसेस भी होंगे ऑप्शंस में, तो आपको वो वाले केसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो वो दूसरा वाला केस भी किसी ना किसी तरीके से आया हुआ होता है, ठीक है? तो आपको वो बाकी सारे ऑप्शंस भी समझने होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, इवन दो वो रॉन्ग आंसर था। तीसरा, आपको मैप करके रिवाइज करना है। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमें समझ आ रहा था कि अच्छा सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स में से आए हैं, वो आप मैप करो कि वो अच्छा ये वाले क्वेश्चंस उस वाले कॉन्सेप्ट में से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब उसके बाद हम उसको बार बार रिवाइज करेंगे उस वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वो अभी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। उसके बाद पैटर्न हंट, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल गया, अभी हमें ट्रैक करना है कि सेम कॉन्सेप्ट में से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन या फिर डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट कितनी बार कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, सारे हम मैप डाउन करके एक जगह पे पॉइंट आउट करके रख लेंगे। एक जगह पे रख लेंगे का मतलब है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ऐसे शॉर्ट में जस्ट पॉइंट लिख दो उसको, और अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो भी आप जैसे भी ट्रैक कर रहे हो उसको एक ट्रैक में रखो कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में से इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि पिछली बार अगर पूछा था सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इस बार भी सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट अगर सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्स केस के बारे में पिछली बार पूछा था, तो इस बार सेक्शन 15 के ही वाई केस के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर एक्स केस आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 15 का, सेक्शन 15 का, ये जस्ट एग्जाम्पल है, तो 15 के और भी जो दो तीन बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, कोई अगर केस है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको वो सारे केसेस एक जगह पे माइंड में रखने, एक बार रीड आउट कर लेने हैं बस, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे वो कवर कर पाओ। इसके बाद है टॉप मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड, ठीक है? सही करने के साथ साथ हमें क्या गलत नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने की, राइट? सो हमें कोई भी बेयर एक्ट को उठा के कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश अभी शुरू करनी नहीं है। हमें कितना ज्यादा बेयर एक्ट, कितने लाइन बाय लाइन याद है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें कितने क्वेश्चंस मार्क करने हैं, बस इतना से हमें मतलब है, हमें बस मार्क्स लाने हैं, ठीक है? तो बेर एक्ट पूरा उठा के बैठ गए कि चलो अच्छा ये वाला माइनर एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स है, पूरा बेर एक्ट पढ़ लेंगे, ये कभी नहीं करना है, ये बस टाइम कंज्यूम करेगा, दो क्वेश्चन आएंगे, और उसके लिए आप इतना ज्यादा टाइम अभी नहीं अफोर्ड कर सकते हो, यू हैव ओनली 30 डेज। इग्नोरिंग पेपर 1, ये कभी नहीं करना है। पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कुछ अभी नहीं बता सकती हूँ इस वक्त पे, क्योंकि लॉ में तो फिर भी आप अगर थोड़ा रिवाइज कर लोगे फटाफट से, तो आप उसमें से चलो 10 में से 5 4 क्वेश्चंस तो कर लोगे। पेपर 1 अगर नहीं किया है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग शुरू से करनी है ना पेपर 1 की, वो अगर नहीं किया है, और अगर पेपर 1 को आप सोच रहे हो कि अच्छा चलो उसमें 50 नंबर आ जाएंगे तो भी चलेगा, हम लॉ में कर लेंगे स्कोर, ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएटर हमेशा पेपर 1 होता है JRF के लिए स्पेशली। तो अगर आप स्पेशली JRF टारगेट कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, नेट भी कर रहे हो, तभी भी लॉ में जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे बच्चे लगभग सिमिलर लेवल पे ही रहते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। तो उसमें डिफरेंशिएट ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लॉ में आया है वो किसी को भी नहीं आ रहा होता है। बट अगर पेपर 1 में 10 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से
जिन बच्चों ने अच्छे से पेपर वन तैयार किया उनके 8 आते हैं और आपके 2-3 आते हैं, तो यू विल नॉट गेट थ्रू इट। ठीक है, तो पेपर वन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको पेपर वन करना ही है, छोड़ के नहीं जा सकते। स्पेशली इन करंट टाइम्स जब पेपर वन काफी अच्छे लेवल पे डिफिकल्ट, बहुत पहले की बात सही है कि बहुत इजी क्वेश्चंस और बहुत लाइक लॉजिक और उस पे काम हो जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन इट। ठीक है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा देर बोल दिया कि पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन इट। तीसरा, लो वेटेज टॉपिक को फर्स्ट कवर नहीं करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कंपनी लॉ लेके नहीं बैठ जाओगे कि चलो पूरा कंपनी लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ हमारा सिलेबस में है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बहुत लीस्ट आते हैं, तो हमें वो लास्ट में देखना है। अगर टाइम मिला तो, नहीं भी देखोगे तो भी एक बार को चलेगा, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेके बोलोगे कि नहीं ये हमने छोड़ दिया है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर नो मॉक टेस्ट अंटिल लास्ट वीक, ये नहीं कि अभी शुरू किया प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट लेके बैठ गए। मॉक टेस्ट में से क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले हैं कहीं पे। मॉक टेस्ट आपके रिवीजन के लिए है, आपके स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए होता है, हेल्प करता है कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना स्ट्रेस कर को झेल पा रहे हो, क्योंकि वो एनीवे आपको हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा and then comes this recommended sources, because as I said कि सारे बेयर एक्ट्स को खोल के नहीं पढ़ना है, सारी किताबें हमें लॉ के टाइम की नहीं निकालनी है पढ़ने के लिए। तो हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस करना है कि पेपर वन के लिए हम कुछ एक दो किताबें देखें। जो मेन क्लासिक किताब है जो यूज होती है पेपर वन के लिए, वो है केवीएस मदान। ये आपने सुना होगा अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, बट ये बहुत मोटी बुक है और पूरी बुक को गो थ्रू करना भी लाइक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है एक महीने के प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए मैं ये, अपार्ट फ्रॉम दीज सोर्सेज जो कि आप सुनेंगे कि ये मदान बुक है, ट्रूमैन की किताब आती है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि पेपर वन के लिए अगर आप शुरू कर रहे हो और आपको कम टाइम में कवर करना है, प्लीज गो टू यूट्यूब। और बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज हैं, अच्छे टीचर्स हैं जिनके लॉन्ग वीडियोस हैं यूनिट वाइज। ठीक है, तो जैसे 10 यूनिट है ना, हर यूनिट के एक स्ट्रेच पे 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियोस पड़ी है, उसको देख लो। वो जो मैराथन क्लासेस होती है ना, नवदीप मैम की, तलविंदर सर की, बहुत सारे पेपर वन के क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो देख लो, वो काफी कम टाइम कंज्यूमिंग है, और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फोकस करके सिखाएंगे कि कैसे आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, सो दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया एज अ रिसोर्स पेपर वन को कवर करने के लिए। पेपर टू के लिए आपको, जैसे कि मैंने कहा कि जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं वो आपको पहले करने हैं। उसके लिए बुक्स यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है कि एस एन मिश्रा के बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग किताबें आती हैं, तो वो किताब देख सकते हो। पीवाईक्यू के कंपाइलेशंस हैं अवेलेबल मार्केट में, बहुत सारे अलग अलग, अरिहंत के हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो पीवाईक्यू के कंपाइलेशन आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा रेफरेंस के लिए बेयर एक्ट्स यूज कर सकते हो। बुक नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो, बेयर एक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जो माइनर एक्ट्स हैं उसके स्पेशली छोटे छोटे कुछ ही प्रोविजंस है जो है एग्जाम के पर्पज से सिलेबस में मेंशन किए हुए। तो पूरा बैराक ना पढ़ने की ना खरीदने की जरूरत है, उतना पार्ट आप देख सकते हो, दैट वुड बी इनफ। और मेरे ही चैनल पे देर आर मल्टीपल वीडियोज ऑन दोज माइनर एक्ट्स स्पेशली, तो आपको कम टाइम में वो कवर कर देगा बस उतना पार्ट जितना एग्जाम के लिए जरूरी है विथ पीवाईक्यूज। तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो अगर आप उन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो। ठीक है, और ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो दैट यू कैन डू, बट अभी मत शुरू करना, एंड के टाइम पे प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत कर सकते हो। इसके अलावा ये जो मैंने अभी तक बताया, ये इन शॉर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको पहले फाउंडेशन, अपना जो पेपर का सिलेबस मैपिंग है और क्या टॉपिक्स हैं, क्या आपको वीक लगता है, क्या स्ट्रांग लगता है, वो सारा क्लियर करना है आपको पहले। उसके बाद आपको हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, किस तरीके से करना है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड उसके बाद मॉक टेस्ट और रिवीजन जो आपने अभी तक किया है वो सारा को रिवाइज करना, और फिर उसके बाद जो कुछ भी नए नए चीजें आपको कहीं से वीडियो में या फिर न्यूज में कुछ ऐसा मिलता है जो आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक में ऐड कर सकते हो, तो उस नोट्स में आप जस्ट ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द
कंप्लीट 30 डे स्टडी स्ट्रैटेजी जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप यूज कर सकते हो टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन यूजीसी नेट विद जेआरएफ। और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप करोगे तो हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि 30 डेज बहुत लंबा टाइम नहीं होता है, तो आप अगर कोर्स खरीदना चाहते हो, द कोर्स which I'm offering, and it is going to start from 5th of May. So those who wish to join this course, they can join it. It is a 1 month course, and daily 1 hour classes will be taken from Monday to Saturday, and Sunday will be there for a personalized mentoring session for those who require it. And there will be 27 session, 10 units will be covered in that, and we will revise all the topics, and it will be based on the previous year question as well. So it will be very helpful, and in case you need guidance in your preparation and you need a course like this, you can register for the same. Link will be given below, and you'll get all the details and information regarding it once you register for the same. And yes, I hope this video was helpful to you all, and see you all in the class as well, if for those who register for the same. Thank you so much. See you in my next video. Good night.